Hello everyone. So welcome to Academy of Fashion and Art, and this is Rekha Kejriwal. So all of us know that Nift results for the bachelor's programs were announced last night, and there are a lot of questions, confusions, and excitement among all of you. So first of all, my dear students, congratulations to everyone because all of you are eligible for the counseling process, as all of you have received a rank which will be required for applying into the counseling process. Now, all are requested first to save your scorecard and just check whether all the details are correct or not, your category is mentioned or not, and there are two ranks awarded in your scorecard. One is common merit rank, and the next one is category merit rank. Now there are a lot of questions I'm getting from last night, and students are asking variety of questions. So my dear students, let's talk about few questions which are very general, and you must know how to uh, how to solve those queries and how to act upon it while preparing for the counseling process, because अब ये सवाल है आपके फ्यूचर का, और एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा मिथ आपकी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को खराब कर सकता है. So I'm sharing my screen to tell you some important pointers, and I'll also tell you what all documents you must check in the Nift website and how should you be prepared for the counseling process. So are we ready? So requested to save your scorecard and check all the given details along with the category, common merit rank on which the counseling will take place, along with the category merit rank. So all of you, while applying, you must have applied through some category. आप ओपन कैटेगरी से थे, आप ओबीसी एनसीएल से थे, आप एससी एसटी कैटेगरी से थे, या आप जनरल ईडब्ल्यूएस से थे. So you need to check with your category, and then only you will be able to get the benefit of both the ranks. अब इसके अलावा हमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आप प्लीज ये लिस्ट चेक कर लीजिए और सेव कर लीजिए. From the Nift official website, you must check your seat matrix. अब ये seat matrix क्या है? Availability of seats, जिसके थ्रू आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे और अपनी रैंक से एक अंदाजा लगाओगे कि शायद आपको क्या मिल सकता है. Since many of you got category merit rank also, so you also need to check with the reservation status कि कौन सी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है. So that also I will share and let you know. Then next part will be your documentation and annexures that is announced in the Nift website. So you can check and again take care of all the documentation and prepare it in advance. And सबसे बड़ी चीज, निफ्ट की वेबसाइट पर आप कट ऑफ मेरिट रैंक फॉर एडमिशन 2023 भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर किस रैंक से काउंसलिंग शुरू हुई और किस रैंक पर काउंसलिंग को बंद किया गया. The list of documents which is announced by NIFT, जो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं. जब आप फाइनल काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप हैसल फ्री प्रोसीजर के लिए आप इन सभी डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करके रखें. निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस डॉक्यूमेंटेशन के पूरे पेज को डाउनलोड कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली हर डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए. सो आई विल नाउ यू कैन सी. सो this is announced by NIFT. So declaration of final result for all the categories of bachelor's program. So this you will get a 13-page document which is available in the NIFT website. Now let's check. List of documents and annexures required to be uploaded for all the bachelor's program, whether documents required to be uploaded for candidates for verification during e-counseling. So this is very important that this is going to be e-counseling. And उन्होंने पहले से ही आपको सब कुछ बता रखा है कि आप किन किन चीजों के लिए एडवांस में रेडी रहेंगे. So all the BDES student, number one, you need to
keep ready a self-attested copy of your class 10th certification. आपको क्लास 10th में जो आपका सर्टिफिकेट है, आप उसकी फोटोकॉपी लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि उस पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर क्लास 10 सर्टिफिकेशन, इसका स्कैन कॉपी, keep it ready, save it in a folder, and keep the hard copy also in a folder. So hard copy and the original copy separately in a folder, so as per requirement you can produce them. Number 2, self-attested copy of class 12th mark sheet or undertaking in annexure 1 in case the result is not declared by the board. So all of us, both are mandatory. But in case अगर किसी बच्चे का क्लास 12 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, then it is mandatory that इसी डॉक्यूमेंट के एंड में there is one annexure 1. So that annexure 1 का आप एक प्रिंट आउट निकालिए, उसे फिल करिए and keep it ready. Right? Number 3, all the students are requested to check with the list of documentation which is mentioned in the Nift website. Please download the document and keep everything ready. So number 1 says self-attested copy of class 10 certification. So this means आपके क्लास 10 की जो सर्टिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी लीजिए, अपने सिग्नेचर करिए, स्कैन करके आप अपने फोल्डर में सेव करके रखिए। अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की हार्ड कॉपी को एक फोल्डर में रखिए। इवन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक सेपरेट फोल्डर में सेव करके रखिए। नंबर 2, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12 मार्कशीट। अभी 12th के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो आप सभी को अपने मार्कशीट्स जो है डिजी लॉकर से मिल जाएंगे। आप उसकी एक कॉपी लीजिए, कॉपी पर फिर से अपने सिग्नेचर करिए, स्कैन इट एंड सेव इट इन योर फोल्डर एंड कीप द हार्ड कॉपीज आल्सो इन द सेपरेट फोल्डर्स। इसके अलावा अभी आपको क्लास 12 का एक पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सो दैट पास सर्टिफिकेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड व्हिच इज टू बी सबमिटेड लेटर ऑन, अगर आपको वो अभी रिसीव नहीं हुए हैं। जिसके पास हैं, जो लास्ट ईयर के 12th पास आउट हैं, आप अपने 12th का पास सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी को सेल्फ टेस्ट करके फोल्डर में सेव रखेंगे, और जब काउंसलिंग का समय आएगा तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अकॉर्डिंगली अपलोड करने हैं, जिससे ये वेरीफाई हो सके और आपका प्रोसेस आगे बढ़ सके। ठीक है, नाउ सी पॉइंट नंबर 4, self-attested copy of valid SC, ST or some other reserved category certificate. तो जिन बच्चों ने रिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया था, so you again need to present these certifications mandatorily. Please check with the dates. These were informed in advance. निफ्ट के प्रोस्पेक्टस में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उनके सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट एंड डेट वाज मेंशन, सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दैट सर्टिफिकेट रेडी, एंड अगेन ऑल दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दो सर्टिफिकेशन। सेल्फ अटेस्टेड जब आप करेंगे, मेक श्योर कि आप उसका कॉपी निकाल लें और उसकी फोटो कॉपी पर अपने सिग्नेचर करें और उन्हें वापस स्कैन करके एक फोल्डर में डाल दें, और स्कैन करने के बाद आपने जिन फोटोकॉपी पर सिग्नेचर किया है वो हार्ड कॉपी और अपने ओरिजिनल कॉपीज को सेपरेट फोल्डर्स में सेव करके रखें। राइट? तो सभी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे प्लीज केयरफुली अपने सर्टिफिकेट्स की डेट्स को, अपने सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को रीचेक कर ले, अदरवाइज फाइनल एडमिशन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्हाट अदर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो बात हो गई कि आपके सर्टिफिकेट्स की, आपके 10th के सर्टिफिकेट, आपके 12th के सर्टिफिकेट, आपके रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट, दीज यू नीड टू सबमिट। इसके अलावा क्या, सो निफ्ट आल्सो नीड्स सम अदर डॉक्यूमेंटेशंस which were given in the prospectus in advance, and आप सभी बच्चों के कन्वीनियंस के लिए निफ्ट ने फिर से इस डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट में वो एनेक्चर्स अटैच किए हुए हैं। ये अटैचमेंट की फोटोकॉपी आप फिर से निकालेंगे, उसे अकॉर्डिंगली खुद फिल करेंगे या किसी एक्सटर्नल बॉडी से जो फिल करवाना है करवाएंगे, और आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे।
नाउ व्हाट आर दीज डॉक्यूमेंट्स? एनेक्सर 1, अगर किसी का 12th का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो आपको एनेक्सर 1 की जरूरत पड़ेगी। एनेक्सर 1 निकालें, प्रिंट आउट लें, fill the relevant information and keep it safe and keep a scanned copy also ready. Annexure 2 says that this is undertaking of anti-ragging. So this is mandatory for all of you. ठीक है, Annexure 2 is mandatory for all of you. आप सभी बच्चे Annexure 2 की कॉपी निकालेंगे, फिल करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी को अपने फोल्डर में रखेंगे और ओरिजिनल कॉपी को आप एक सेपरेट फोल्डर में रखेंगे, जिससे जब ये रिक्वायर्ड है आप इसे फिजिकली भी सबमिट कर पाए। थर्ड इज undertaking to be signed by sponsoring NRI, foreign national, OCI and PIO. So this is for NRI category students. So you may use it. So this is not for all the students, only student who is applying through NRI category. Number 4 is undertaking for refund of fees. आप सभी जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है किसी रीजन से आपको रिफंड लेने की जरूरत पड़ जाए, तो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ फी विच इज एनेक्सर 4 इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और फिल करके खुद के पास रखेंगे और स्कैन कॉपी अपने फोल्डर पर सेव कर लेंगे। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। सो नंबर 5 इज योर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इस मेडिकल फिटनेस योर एनेक्सर 1, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस लिंक को आप यहां से डाउनलोड कर ले या निफ्ट की वेबसाइट पर जाकर फिर से डाउनलोड कर ले। सो दिस सेज format for undertaking for candidates seeking provisional admission, जिसके 12th के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, जिनको प्रोविजनल एडमिशन चाहिए, उन बच्चों के लिए ये एनेक्सर 1 बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। नाउ एनेक्सर 2, सो दिस इज mandatory for all the students, right? So this is an undertaking from the candidate as per the provision of anti-ragging verdict by the Honorable Supreme Court. तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप सभी बच्चों को प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके साइन कर लेना है ना। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं, सिग्नेचर आप देख लीजिए, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, ये सभी सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट मिस इट। नाउ ऑनसेट सी, जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, so please check with this undertaking and fill in the relevant information. This will be of this will just keep your admission process very convenient and easy. Annexure 4, again, this is mandatory for all the students. So this is an undertaking for refund of fee. So here you have here you have all the details that if you want to take a refund, what would be the process and what kind of refund NIFT is going to make to you. All right, so please check it carefully and keep it ready. सभी डॉक्यूमेंट्स के ई कॉपी, स्कैन्ड कॉपी रखना बहुत जरूरी है और स्कैन कॉपी के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब आप फिल करोगे तो इन सभी की हार्ड कॉपी भी एक सेपरेट फोल्डर में जरूर मेंटेन करके रखें। Then now this is the most important part and very confusing, इसके कारण बच्चे बहुत परेशान होते हैं, but this you must know. So this is medical certificate of fitness annexure 5. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन बच्चों को रैंक मिली है, आप ये इमीडिएटली रेडी करवा ले। एंड में या थोड़े समय के बाद बहुत रश हो जाता है एंड आप सभी को जो रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता। So this is medical certificate fitness format. Please read this instruction carefully. Every year I have seen बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो आप इसकी कॉपी निकाल लीजिए and read the instruction carefully.
candidate must fill the details. Candidate must fill the details of the Form A before the medical examination by the medical officer in any government hospital. आपको government hospital से ही ये certificate ready करवाना है. आप Form A की copy को fill कर लीजिए. These are your personal details, which includes your name, age and place of birth, your address. So please check with all 12 pointers and fill all the relevant information carefully. Don't forget to put your signature and don't forget to take the signature of medical officer with stamp. ये फॉर्मेट आपको मेडिकल ऑफिसर के सामने फिल करना है और उनका सिग्नेचर और उनका ऑफिशियल स्टैम्प यहाँ लेना जरूरी है. Then only this documentation will get valid. Alright, I hope students आपको ये clear हो रहा है. Form B. So this is a medical checkup. Form B की भी कॉपी आप साथ में लेकर जाएंगे. जिस भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप अप्रोच कर रहे हैं, ये सभी डिटेल्स वहां फिल होंगे और फिल होने के बाद सी फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अटेस्टेड बाय द मेडिकल ऑफिसर. यहाँ आपकी फोटोग्राफ लगेगी जिसको कि गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर signature attest karega and signature of the medical officer with stamp. Again you can see, so this you have to put here. So this annexure 5 is very important. All these students, you should not forget that this documentation is very important for your counseling process. तो ये जो जितने भी 13 पेज के डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताए, ये निफ्ट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे. मैं फिर से बोल रही हूं, इसकी कॉपी इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के एंड में दे देंगे. बट हर ऑफिशियल जानकारी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट देखें और कहीं के भी इंफॉर्मेशन पर रिलाई ना करें. नाउ दूसरी चीज, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको क्या चेक करना चाहिए. So there are few more important things जिसमें seat matrix है. Now what is the seat matrix? Please check with the availability of seats. आपको फैशन डिजाइन करना है, आपको फैशन कम्युनिकेशन करना है, आपको लाइफस्टाइल एक्सेसरी करनी है, आपको लेदर डिजाइन करना है. ये सभी कोर्सेज आप बीएफटेक कर रहे हो, कहाँ से कर सकते हो, किस सेंटर पर कितनी सीट है, ये पूरी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है. और इसकी कंप्लीट नॉलेज कहाँ मिलेगी? फिर से निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे. सो नाउ अगेन आई एम सो हियर यू कैन चेक कि निफ्ट के 6 डिजाइन कोर्सेज हैं, निफ्ट के बीएफटेक के कोर्सेज हैं, निफ्ट के 18 सेंटर्स हैं. तो किस सेंटर पर किस कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल है. ठीक है, आपकी जो भी रैंक आई है, बिना इस सीट की जानकारी के आप उसे मैच नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आपको क्या मिलने वाला है. तो आप सभी बच्चे प्लीज डू योर होमवर्क, चेक करिए कि आपके रेलेवेंट कोर्सेज में जिन जिन कोर्सेज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, निफ्ट के किस सेंटर पर कितनी सीट्स है. राइट, ये सीट मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट भी आपको निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा. केयरफुल इज यू ऑल्सो हैव टू सी what was the last cutoff rank which got admission. I mean the last cutoff rank which got admission into NIFT last year, which center, what all courses. तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे तो आप एक अपना एक्सपेक्टेशन लिस्ट ऑफ चॉइसेस बना सकते हो जिससे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाए. एंड क्लोजिंग CMR फॉर एडमिशंस 2023. आप सभी बच्चों को जो भी रैंक मिली, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस रैंक पर मुझे क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है. देखिए, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि निफ्ट की काउंसलिंग जो है बहुत जल्दी शुरू होगी. जनरली इस काउंसलिंग प्रोसेस में पूरे 1 महीने का समय लग जाता है. पूरी जून और जुलाई हमारी काउंसलिंग चलती रहती है. तो ये जो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग CMR इज कॉमन मेरिट रैंक. काउंसलिंग हमेशा कॉमन मेरिट रैंक पर ही होती है.
तो जब आपकी काउंसलिंग हो रही है, ये जो स्टेटस है पहली काउंसलिंग से लेकर एंड काउंसलिंग, जो भी 3, 4, 5, 6 काउंसलिंग हुई होगी, ये क्लोजिंग सीएमआर है। तो दिस जस्ट सेज दैट वंस यू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, आप एक ही काउंसलिंग के बाद रुक ना जाएं, वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, अपडेट्स देखते रहें और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते रहें। ठीक है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीएमआर भी आपको निफ्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन कैन बी कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। सो रिजल्ट्स अभी अभी अनाउंस हुए हैं, बहुत जल्दी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। बट अगर हम प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखते हैं तो आपकी काउंसलिंग में पूरे जून और मिड ऑफ जुलाई तक का समय चला जाता है। कितनी काउंसलिंग्स होती है, तो कितनी काउंसलिंग में ये अकॉर्डिंगली निफ्ट कीप्स ऑन अनाउंसिंग। जब आप जितने भी बच्चों को रैंक मिली है, आप सभी बच्चे जब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, सो डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर काउंसलिंग, नंबर ऑफ काउंसलिंग्स डिसाइड की जाती है। तो पहले आप मानकर चलिए कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग के स्टेटस के बाद सेकंड काउंसलिंग आएगी, फिर थर्ड काउंसलिंग आएगी। अगर कुछ सीट्स रह गई, देन ओनली निफ्ट विल डिसाइड कि वो काउंसलिंग नंबर 4, 5 या 6 करेंगे या नहीं। तो मैं सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी होप ना छोड़े, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप एएफए के टीम मेंबर को मैसेज या कॉल के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि आपको किस रैंक पर क्या सीट मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी रैंक पर किसी सीट को कौन सी सीट मिलेगी ऐसी कंफ्यूजन है, तो यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। अलग अलग चॉइसेस का मतलब आप सभी बच्चे अलग अलग लोकेशन से हो, आपका कोर्स चॉइस अलग हो सकता है, आपका लोकेशन चॉइस अलग हो सकता है। राइट, बट ये तो नहीं पता ना कि रैंक 1 कौन सी जगह का है, रैंक 2 कौन सी जगह का है, या किस रैंक के बच्चे को कौन सी जगह चाहिए। हो सकता है आप अपना लोकेशन चेंज करने में इंटरेस्टेड हो सकता है आप अपना लोकेशन चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, दोनों ही बातें हो सकती है। तो ऐसा होता है, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को काउंसलिंग के दौरान डालें, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। Now, if you say that you are interested in fashion design, तो आप ये make sure करिए कि फैशन डिजाइन जिस भी लोकेशन पर अवेलेबल है, आप सारी की सारी चॉइसेस डालें। आप उसका ऑर्डर प्रेफरेंशियल रख सकते हो कि आपका प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या है। आपका पहला चॉइस दिल्ली है, मुंबई है, गांधीनगर है, और मे बी इफ यू से दैट यू बिलोंग टू साउथ इंडिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला चॉइस निफ्ट बैंगलोर या निफ्ट चेन्नई भी हो सकता है। राइट, सो एडवाइस विल बी कि आप चॉइसेस को मोर इन नंबर रखें, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस डालें जिसमें सीट अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, एंड डोंट जस्ट रिलाई, आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइन, तो ऐसा ना करें कि आपने सिर्फ फैशन डिजाइन के लिए अप्लाई कर दिया। आप फैशन डिजाइन के लिए अगर इंटरेस्टेड थे तो एडवाइजेबल कि आप अपनी चॉइस में टेक्सटाइल डिजाइन भी डालें, आप अपनी चॉइस में निटवेयर डिजाइन भी डालें, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहली काउंसलिंग में अपने चॉइस का कोर्स या सेंटर नहीं मिला, लेकिन फर्दर काउंसलिंग्स में ये सीट अपग्रेड होने के चांसेस होते हैं। बट इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड टू वेट till the further information is provided by NIFT. So all these students, now again I will just summarize whatever we discussed in this video. सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना स्कोर कार्ड सेव कर ले, चेक कर ले आपके सभी डिटेल्स करेक्ट है या नहीं, आपकी कैटेगरी मेंशन है या नहीं, आपकी कॉमन मेरिट रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी मेरिट रैंक क्या है। देन आप चेक कर ले, आप अपना होमवर्क कर ले सीट मैट्रिक्स को देखकर कि किस सेंटर पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं।
जिससे आप अपनी रैंक से एक अपनी एनालिसिस, अपना लिस्ट बना सके कि हाँ, अगर मुझे ये निफ्ट और ये सेंटर मिल रहा है, सो आई एम रेडी टू टेक। थर्ड विल बी थर्ड विल बी प्लीज चेक विद द लास्ट कट ऑफ स्टेटस, बट डोंट फॉरगेट कि जो लास्ट कट ऑफ स्टेटस which is mentioned for 2023 is this includes the status of all the counseling. So just stay connected with the counseling process. Generally, first counseling is free of cost, and if any charges are applied for the second or third counseling, that will be announced by NIFT. Okay, so just be careful, always rely on the informations given by the NIFT website, not to any other private individual or website. मैं भी आपको जो बता रही हूँ वो निफ्ट की वेबसाइट से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही बता रही हूँ, और प्रीवियस ईयर प्रोसेस में क्या हुआ है वो ऑब्जर्व और एनालिसिस करने के बाद ही बता रही हूँ. सो जस्ट बी केयरफुल. ठीक है, जब काउंसलिंग प्रोसेस अनाउंस होगा, फिर से मेरी बात याद रखना, आप सभी बच्चे मैक्सिमम चॉइसेस के लिए अप्लाई करना, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम. एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो निफ्ट की वेबसाइट पर मेंशन है, जिसमें आपके सभी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, जिसमें आपके एनेक्शर्स की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, सभी बच्चे आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, आज से ही उसके प्रिंट आउट निकाल कर उसे रेडी करना शुरू कर दीजिए. आई होप जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने ये शेयर की, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. आप सभी बच्चे फर्दर stay connected with AFA. Please keep on checking the official website of NIFT. And what I feel is, अगर आप करेक्ट प्रोसेस से काउंसलिंग प्रोसेस को अप्लाई करोगे, उससे कनेक्टेड रहोगे, 200% आपको निफ्ट की एक सीट जरूर मिलेगी. और बस ये प्रे करना चाहूंगी कि आप सभी को जो आपने सोचा है आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक सैटिस्फैक्टरी कोर्स और सेंटर मिल जाए. So all the students, all the best, and stay connected with AFA for further information. Thank you.